ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ دفتر نہایت شاندار مگر سادگی سے آراستہ تھا۔ دیوار پر قد آدم کتابوں کی الماری، ایک طرف ونڈو کے پاس رکھا نفیس سا صوفہ سیٹ اور درمیان میں بھاری لکڑی کی میز جس پر ترتیب سے فائلیں رکھی تھیں۔ دفتر میں خاموشی کی فضا تھی سوائے وال کلاک کی ٹک ٹک کے۔ دروازہ ہلکے سے کھٹکا۔ سکندر صاحب نے وہ سر اٹھا کر دیکھا۔ دروازہ کھلا اور جہانگیر عالم داخل ہوا۔ نیوی بلو شرٹ اور جینز میں ملبوس، قدرے سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہ آہستگی سے باپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ سکندر صاحب نے اس پر ایک گہری نظر ڈالی اور ہلکے طنزیہ انداز میں بولے، آج لاٹ صاحب کیسے آ گئے آفس میں؟ کوئی نئی فرمائش ہوگی یقیناً۔ جہانگیر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ باپ کو دیکھتے ہوئے بولا، آج جو چیز مانگنے آیا ہوں وہ شاید میری آخری خواہش ہوگی بابا۔ اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ کا بیٹا کیا کرے گا۔ سکندر صاحب نے اپنی فائل بند کر کے میز پر رکھ دی، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور پوری توجہ بیٹے پر مرکوز کرتے بولے، کیا مطلب؟ کیا مانگنے آئے ہو؟ چند لمحے جہانگیر خاموش رہا، نظریں جھکائیں، گہرا سانس لیا اور پھر آنکھیں اٹھا کر بولا، ایک لڑکی پسند کی ہے، بس تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ سکندر صاحب کی بھامیں قدرے چڑھ گئیں۔ کیا مسئلہ؟ جہانگیر نے بات جاری رکھی، عمر میں مجھ سے چھوٹی ہے اور ہماری حیثیت سے بھی۔ سکندر صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا، کتنی عمر ہے اس کی؟ جہانگیر نے سر جھکایا، پھر آہستگی سے بولا، 18 سال۔ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے، لیکن وعدہ کرتا ہوں اسے خوش رکھوں گا بابا، ساری زندگی سر آنکھوں پر بیٹھاؤں گا۔ سکندر صاحب کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، چند لمحے کمرے میں ٹہلتے رہے، پھر رک کر سخت لہجے میں بولے، نام کیا ہے؟ کہاں دیکھی ہے؟ کون ہے؟ خاندان کیا ہے؟ جہانگیر نے تحمل سے جواب دیا، بابا پلیز حسب نسب کی بات مت کریں، بتایا ہے نا وہ ہماری حیثیت سے کم ہے، لیکن وہ لڑکی بہت خاص ہے۔ سکندر صاحب نے مایوسی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ ان کی آنکھوں میں غصے سے زیادہ بے یقینی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا جہانگیر۔ انہوں نے قدم واپس میز کی طرف بڑھائے اور انٹر کام کا بٹن دبا کر بولے، خاور کو میرے آفس بھیجو۔ پھر جہانگیر کی طرف دیکھے بغیر بولے، خاور کو لڑکی کا نام بتا دینا، وہ اس کی پوری تفصیل نکال کر لے آئے گا، پھر میں دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے، فی الحال تم کچھ نہیں کرو گے۔ جہانگیر نے سر جھکایا اور بغیر کچھ کہے چپ چاپ بیٹھا رہا۔ سکندر صاحب فائل دوبارہ اٹھائے بغیر دفتر سے باہر چلے گئے۔ کمرے میں صرف جہانگیر کی خاموشی اور دیوار پر چلتی گھڑی کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ آفس کی فضا بدستور سنجیدہ اور خاموش تھی۔ لمبے چوڑے کمرے میں صرف وال کلاک کی ہلکی ہلکی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ جہانگیر کرسی پر بظاہر پرسکون بیٹھا تھا، مگر چہرے پر پھیلی خاموشی اس کی اندر کی بے چینی کو چھپا نہ سکی۔ نظریں کبھی میز پر رکھی فائلوں پر جاتی، کبھی دروازے کی طرف۔ اچانک دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ جہانگیر نے نظریں اٹھائیں، دروازہ کھلا اور اندر خاور داخل ہوا۔ سکندر صاحب کا پرانا ملازم، عمر کی پختگی چہرے پر نمایاں، مگر انداز میں ہمیشہ کی طرح جھکاؤ اور وفاداری۔ وہ قریب آ کر ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جہانگیر نے اس پر ایک سرسری نظر ڈالی، پھر آہستگی سے بولا، بابا نے بھیجا ہے؟ خاور نے سر ہلایا، جی انہوں نے کہا ہے آ کر آپ سے مل لوں۔ جہانگیر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، قدم بڑھا کر خاور کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خاور کا چہرہ حیرانی میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ ایسا انداز اس نے جہانگیر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دیکھو خاور، جہانگیر کی آواز میں درد بھی تھا، نرمی بھی، بچپن سے تم میرے ساتھ ہو، مانتا ہوں میں نے کبھی تمہیں عزت سے نہیں بلایا، نہ کبھی تمہارے کام کی کھلے لفظوں میں تعریف کی، لیکن کیا کبھی تمہیں بے عزت کیا، برا کہا؟ خاور نے نظریں جھکاتے آہستہ سے کہا، نہیں صاحب، کبھی نہیں۔ جہانگیر نے اپنی گرفت مضبوط کرتے کہا، تو بس پھر آج تم سے ایک ذاتی بات کرنی ہے۔ اگر بابا نے تمہیں کوئی ایسا حکم دیا جس میں ماہین، یعنی جس میں وہ لڑکی ختم ہو یا اس کا نقصان ہو، تو تم نہیں مانو گے، وعدہ کرو۔
वो मेरी मोहब्बत है खावर। पहली बार किसी को देखा है और दिल ठहर गया है। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। बस इतना याद रखना, मैं उसे बहुत चाहता हूं। खावर ने आंखें उठाकर जहांगीर की संजीदा आंखों में देखा, फिर हल्के से बोला, साहब, अगर मैं सिकंदर साहब का वफादार हूं तो आपका भी हूं। आप बस मुझे नाम दें या तस्वीर, मैं पूरी डिटेल निकाल लूंगा। लेकिन आप फिक्र ना करें, अगर वो लड़की आपके लिए इतनी अहम है तो मैं भी उसे नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। जहांगीर ने गहरा सांस लिया, फिर कुर्सी की तरफ वापस जाते आहिस्ता से बोला, मैंने खुद सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। नाम माहीन है, उम्र 18 साल, एक गरीब मगर इज्जतदार घराने से है। बाप एक प्राइवेट इदारे में क्लर्क है। माँ बीमार रहती है, लेकिन उनकी इज्जत पर कभी हर्फ नहीं आया। फिर एक पल रुककर खावर की तरफ देखा। देखो खावर, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। खावर ने सादगी और वफादारी से सर हिलाया। जी साहब, जैसा आप चाहें। और फिर खामोशी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वो खामोशी जहांगीर के दिल के इत्मीनान जैसी थी। दोपहर की धूप बरामदे में नीम गरम सी रोशनी बिखेर रही थी। सदीक साहब का छोटा सा घर एक आम मगर साफ सुथरा सा मंजर पेश कर रहा था। बरामदे की एक साइड पर पुराना लोहे का पंखा घूम रहा था, जो गर्मी के एहसास को थोड़ा सा कम कर रहा था। दीवार से टेक लगाकर रखी गई चारपाई पर चादर बिछाकर दोनों बहनें बैठी थीं, आयशा और माहीन। दोनों के सामने कॉपी, पेंसिल और हिसाब की किताबें खुली पड़ी थीं। माहीन उलझी हुई नजरों से अपने रजिस्टर को घूरती अचानक बोली, आयशा बाजी, ये वाला सम सॉल्व ही नहीं हो रहा। देखो ना, मेरा दिमाग खराब हो गया है। आयशा, जो रजिस्टर में कुछ लिखने में मसरूफ थी, बिना सर उठाए एक हाथ उसके सर पर मारा और बोली, कुन जहन लड़की, जाकर चाय बना लाओ। तुम्हें कब कहा था बनाने के लिए? माही ने छोटा सा मुंह बनाया, जैसे कोई बेहद जुल्म हो गया हो। आप करती ही ऐसे हैं मेरे साथ। मैं आपसे क्या कह रही हूं और आप मुझे चाय बनाने को कह रही हैं। आप सब मुझसे काम करवाते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। फिर एक अदा से अपनी किताब बंद की और बरामदे से अंदर जाने के लिए उठते हुए बोली, देखना, एक दिन कोई शहजादा आएगा, घोड़े पर नहीं तो कम से कम गाड़ी पर ही सही, और मुझे आप सबसे छीन कर ले जाएगा। फिर आप सब रोते रह जाएंगे और मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी। ये कहते हुए वो अकड़ कर चली गई, इस बात से बेखबर कब की बातें कब सच हो जाएं कुछ पता नहीं चलता। आयशा ने अफसोस से सर हिलाया और पीछे ऊंची आवाज में बोली, चाय अच्छी बनाना वरना तुम्हें बहुत मारूंगी। माही ने अंदर जाते जाते मुड़कर एक नजर बहन को देखा और मजीद मुंह फुलाकर बोली, धमकियां दे रही हैं जैसे मैं बहुत डरती हूं। और फिर धप धप करती अंदर चली गई। आयशा ने हंसी दबाई, सर हिलाते हुए अपनी किताब की तरफ मुतवज्जो हो गई, इस बात से बिल्कुल बेखबर के कुछ फासले पर बैठा आन बान रखने वाला शहजादा वाकई उसकी बहन को उससे छीन लेने का इरादा रखता है। रात का पुरसकून सन्नाटा सिकंदर साहब के घर की स्टडी में खास सा सकूत पैदा किए हुए था। स्टडी रूम की भारी लकड़ी की अलमारियों में किताबें तरतीब से रखी हुई थी और एक दीवार पर घड़ी की हल्की सी टिक टिक की आवाज आ रही थी। कमरे के कोने में एक शानदार लकड़ी की मेज पर एक लैंप चल रहा था, जिसकी रोशनी में सिकंदर साहब ऐनक लगाए एक मोटी सी किताब का मुताला कर रहे थे। उनकी पेशानी पर गहरी सोच की शिकनें वाज़िहा थी। दरवाजा आहिस्ता से खटका और इजाजत मिलने पर जहांगीर अंदर दाखिल हुआ। वो खामोशी से चलता हुआ सोफे की तरफ बढ़ा और आकर सिकंदर साहब के सामने बैठ गया। वो जानता था इस रिश्ते को मुमकिन उसका बाप ही बना सकता है। कर वो भी सब कुछ सकता था, रिश्ता मांग सकता था। अगर रिश्ता ना मिलता तो वो लड़की उठा सकता था, मगर उसे सिर्फ एक डर था, अगर उसने अपने बाप के खिलाफ जाकर ये रिश्ता किया तो उसका बाप लम्हा लगाएगा और उसकी बीवी को ख़त्म कर देगा। वो अपने बाप की फितरत से बखूबी वाकिफ था, इसलिए हर चीज़ में उन्हें अहमियत दे रहा था। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर जहांगीर नरमी से बोला, बाबा, आपने क्या सोचा है? खबर ने आपको मालूमात तो दी होंगी। सिकंदर साहब ने गहरी सांस ली, किताब बंद की,
ऐनक उतारी और मेज पर रख दी। फिर अपनी कुर्सी की पुष्ट से टेक हटाते सीधे हुए और संजीदगी से जहांगीर की तरफ देखने लगे। देखो जहांगीर, उनकी आवाज में गहरा सुकून और वजन था। वो लड़की तुमसे 10 साल छोटी है और जितना खावर ने मुझे बताया है वो बहुत मासूम, सादा तबीयत की और एक गरीब घराने से है। तुम दोनों का कोई जोड़ नहीं बनता। तुम्हें तो जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है। वो नाजुक सी लड़की कैसे बर्दाश्त करेगी तुम्हें? जहांगीर अचानक अपनी जगह से उठा और सिकंदर साहब के कदमों में बैठ गया। उनका घुटना थाम कर उनकी आंखों में देखते बोला, बाबा, जिंदगी में पहली बार किसी को देखा है जो दिल में उतर गई है। मैं नहीं जानता वो मुझसे छोटी है या गरीब है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि वो मेरी जिंदगी है। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? खुदा के लिए बाबा, प्लीज। सिकंदर साहब इस गैर मुतवक्को रवैये पर कुछ लम्हे उसे हैरत से देखते रहे। उनके चेहरे पर हैरत के साथ साथ बेबसी और नरमी भी उभरने लगी। जहांगीर, वो आहिस्ता से बोले, होश में हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? उन्होंने आज तक अपने बेटे को इस तरह नहीं देखा था। उसे कुछ भी चाहिए होता था तो वो छीन लेता था और छीन कर बर्बाद कर देता था, लेकिन कभी इस तरह बर्ताव नहीं करता था। मगर इस बार कोई चीज नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती औरत थी जिस पर वो दिल हार बैठा था। जहांगीर ने सर झुका लिया। आवाज धीमी मगर जज्बात से भरी हुई थी। मोहब्बत हो गई है बाबा, सच में। बस एक मौका दे दें। कमरे में खामोशी छा गई। चंद लम्हे सिकंदर साहब ने सोचते हुए गुजारे, फिर नरमी से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और बोले, अच्छा ठीक है, कल हम दोनों चलते हैं, उसके बाप से बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये सुनते ही जहांगीर ने खुशी से आंखें उठाई, तेजी से खड़ा होकर सिकंदर साहब को गले लगा लिया। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सो मच। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं कितना खुश हूं। सिकंदर साहब ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई। चलो अब जाओ और मुझे थोड़ा आराम करने दो, कल बात होगी। जहांगीर सर हिलाते बाहर निकल गया, चेहरे पर खुशी और उम्मीद की रोशनी लिए। सिकंदर साहब कुर्सी पर बैठे एक बार फिर किताब खोलने लगे, मगर अब उनकी आंखों में भी एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी, जैसे दिल के किसी कोने में वो बेटे की खुशी से राजी हो चुके हों, लेकिन इस बात से बेखबर कि ये रिश्ता उन्हें कितनी जिल्लत देने वाला है। सदीक साहब इस वक्त अपने कमरे में चारपाई पर बैठे, हाथ में तस्बीह लिए धीरे धीरे दाने फेर रहे थे। उनके चेहरे पर दिन भर की थकन के आसार वाज़ेह थे, लेकिन पेशानी पर सोच की शिकनें मजीद गहरी थी। सुल्ताना बेगम अपने कपड़ों को तय करती हुई पलंग के दूसरे सिरे पर बैठी थी। उन्होंने खामोशी तोड़ी। सिद्दीक, कुछ कह रहे थे आप आयशा के बारे में? सिद्दीक साहब ने तस्बीह एक तरफ रखते धीरे से बोले, हाँ, मैं सोच रहा था कि आयशा के लिए जो रिश्ता आया है वो अच्छा है। लड़की की सरकारी नौकरी है, खानदान भी सीधा सादा सा है। मैं चाह रहा था बातचीत पक्की कर दूं और फिर जैसे ही इसका ग्रेजुएशन मुकम्मल हो शादी कर देंगे। सुल्ताना बेगम ने एक लम्हा खामोशी से गुजारा, फिर धीमी आवाज में बोली, सिद्दीक, आप तो जानते हैं हमारे पास जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप जो कमाते हैं वो तो रोजमर्रा के अखराजात, बच्चियों की फीस, बिजली का बिल, दवा दारू में सब लग जाता है। मैंने आज तक कुछ बचाया भी नहीं, तो ऐसे कैसे? सिद्दीक साहब ने नरमी से उनकी तरफ देखा, जैसे वो जानते हों कि उनकी बीवी की हर फिक्र जायज है। सुल्ताना, मैं जानता हूं तुम ठीक कहती हो, लेकिन देखो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, रिस्क देने वाला वही है। अगर हम नीयत साफ रखें तो वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। जहेज हो या कुछ और, हम अपनी बिसात के मुताबिक ही करेंगे, मगर रिश्ते को सिर्फ इसी वजह से रद्द करना ठीक नहीं। सुल्ताना बेगम के चेहरे पर इज़्तिराब अब भी नुमाया था। मैं समझती हूँ, मगर सिद्दीक, आयशा की भी तो मर्जी लेना जरूरी है। मैंने कभी उसकी जबान से नहीं सुना कि वो शादी के लिए तैयार है। हमें उससे बात करनी चाहिए ना? सिद्दीक साहब ने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। कल बात करते हैं। अगर वो राजी होगी तो रिश्ते वालों को बुला लेंगे। जबरदस्ती तो किसी से भी नहीं की जा सकती ना। सुल्ताना बेगम ने खामोशी से सर झुका दिया, जैसे दिल ही दिल में दुआ कर रही हूं कि सब कुछ खैर से हो जाए।
अच्छा तो तुम कहो, मैं फिलहाल उनको ना बुलाऊं? हाँ, एक बार आयशा से बात कर लेते हैं, अगर वो मुतमईन हो गई तो फिर जरूर बुलाइएगा। सिद्दीक साहब ने तस्बीह दोबारा हाथ में उठा ली और धीरे से मुस्कुरा दिए। ठीक है, जैसा तुम कहो, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देते हैं। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई, मगर उस खामोशी में एक एतमाद था, जैसे हर फिक्र के बावजूद दिलों में एक उम्मीद छुपी बैठी हो कि किस्मत के दरवाजे किसी न किसी दिन जरूर खुलेंगे। गाड़ी दोपहर के सूरज की रोशनी में सड़क पर खामोशी से रवां दवा थी। खिड़कियों से आती धूप की किरणें गाड़ी के अंदर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी, मगर अंदर का माहौल बिल्कुल साकित और संजीदा था। ड्राइविंग सीट पर खावर पूरी तवज्जो के साथ गाड़ी चला रहा था, जबकि पिछली नशिस्त पर सिकंदर साहब और उनका बेटा जहांगीर बैठा था। जहांगीर की नजरें गाड़ी के शीशे से बाहर खला में गुम थी, जिसे किसी सोच में डूबा हुआ हो। चेहरे पर साफ परेशानी के आसार थे। पेशानी पर शिकने, हाथों की बेचैनी से जाहिर हो रहा था कि अंदर एक इस्तराब की कैफियत है जो उसे किसी तौर सुकून नहीं लेने दे रही। सिकंदर साहब ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। परेशान ना हो जहांगीर, अल्लाह ताला खैर करेगा, हम वहां बात अच्छे से करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूं वो लोग समझदार होंगे और इनकार नहीं करेंगे। जहांगीर ने नजरें झुकाते धीमी आवाज में कहा, बाबा, मुझे सिर्फ उम्र का डर लग रहा है। अगर उन्होंने यही कहकर इनकार कर दिया कि मैं उससे 10 साल बड़ा हूं तो मैं क्या करूंगा? सिकंदर साहब ने हल्की सांस ली और तहम्मुल से बोले, जो होगा देखा जाएगा। मेरा बेटा किसी को पसंद करे और वो लड़की उसके दिल में उतर जाए तो अब वही उसकी दुल्हन बनेगी। मैं खुद इस बात को मुमकिन बनाऊंगा, और अगर उन लोगों ने इनकार किया तो हम अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे। जहांगीर ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। मगर बाबा, लड़की को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वो लड़की मेरा सब कुछ है। मैं चाहता हूं कि वो अपनी मर्जी से आए। उसकी इज्जत, उसकी ख्वाहिश, सबका ख्याल रखना होगा। सिकंदर साहब ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से सर हिलाया। बस यही बात मुझे तुम पर फख्र करने पर मजबूर करती है जहांगीर। तुम्हारे जज्बे में जिद है, मगर जबरदस्ती नहीं। तुम्हारी आंखों में चाहत है, मगर इज्जत के साथ। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। जहांगीर ने सर हिलाया, लेकिन दिल का इस्तराब अब भी पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। गाड़ी शहर के मज़ाफाती इलाकों की तरफ बढ़ रही थी, जहां सिद्दीक साहब का सादा मगर पुरवकार घर था। मंजिल करीब आ रही थी और साथ साथ दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। खावर ने खामोशी से बैक व्यू मिरर से एक नज़र पीछे की, जिसे वो जानता भी हो कि आज के बाद कुछ बदलने वाला है। गाड़ी खामोशी में चलती रही, मगर उस खामोशी में कई फैसले जन्म ले रहे थे। मर्सिडीज एक हल्के से झटके के साथ सिद्दीक साहब के छोटे से घर के सामने रुकी। सादा मगर साफ सुथरा सा मोहल्ला, छोटी छोटी एक मंजिला इमारतें, सड़क के किनारे बच्चे खेल रहे थे और चंद एक हमसाए घरों की छतों से ये मंजर हैरत से देख रहे थे कि इतनी बड़ी गाड़ी गार्ड्स के साथ इस मोहल्ले में कैसे आ गई। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही सिकंदर साहब धीरे से बाहर निकले। उनका वकार, लिबास और चाल ही उनकी शख्सियत की गहराई बयान कर रहा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी फैसले के लिए खुद को अंदर से तैयार कर रहे हों। उनके साथ ही खावर भी गाड़ी से उतरा, जो हमेशा की तरह सादा लिबास और मौदबाना रवैये के साथ एक प्रोफेशनल अंदाज में खड़ा हो गया। जहांगीर गाड़ी से थोड़ा तवक्कुफ के बाद बाहर आया। उसके चेहरे पर वाज़ह घबराहट थी, लेकिन गाब के पीछे खड़ा होकर वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। खावर ने आगे बढ़कर आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हे गुजरे और फिर दरवाजा खुला। सिद्दीक साहब सामने खड़े थे। उनकी आंखों में हैरत और उलझन वाज़ेह थी। उनके सामने खड़े शख्स को पहचानने में उन्होंने सिर्फ चंद लम्हे लिए, मगर मर्सिडीज, गार्ड्स और इस पूरे मंजर ने उन्हें बौखला कर रख दिया। सिकंदर साहब ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, आप सिद्दीक साहब हैं? मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? सिद्दीक साहब ने बेसाख्ता पीछे होते कहा, जी जी आएं, ज़रूर, अंदर तशरीफ लाएं। वो उन्हें लेकर अंदर आए। उनकी चाल में संजीदगी और एहतराम था, मगर अंदाज में एक वाज़ेह हैरानी थी, वो जो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। घर के अंदर दाखिल होकर वो सीधा उन्हें ड्राइंग रूम की तरफ ले आए,
जो अगरचा सादा मगर साफ सुथरा और करीने से सजा हुआ था। सिकंदर साहब अंदर आकर खामोशी से बैठे। जहांगीर भी उनके साथ बैठ गया, जबकि खावर खामोशी से पीछे हटकर दोबारा गाड़ी में बैठने चला गया। सिद्दीक साहब के बैठते ही सिकंदर साहब ने नरमी से उनका हाथ थामा और धीरे से बोले, हम बहुत उम्मीद लेकर आपके दरवाजे तक आए हैं और दिल से दुआ है कि आप हमारी बात को समझें। सिद्दीक साहब ने आहिस्ता से सर हिलाया। जी, आप फरमाइए। सिकंदर साहब ने नरमी से कहा, क्या आपकी बीवी घर पर हैं? अगर मुमकिन हो तो आप उन्हें भी बुला लीजिए। मैं चाहता हूं कि हम जो बात करें वो आप दोनों के सामने हो, क्योंकि ये फैसला आप दोनों की मुशावरत से बेहतर तरीके से मुमकिन है। सिद्दीक साहब ने थोड़ा सा चौंक कर सर हिलाया। जी, अभी बुलाता हूं। ये कहते वो ड्राइंग रूम के बाहर चले गए और पीछे सिकंदर साहब ने अपने बेटे की तरफ एक निगाह डाली, जो खामोशी से अपनी उंगलियां मुट्ठी में दबाए बैठा था। घर के सादा मगर बावकार माहौल में अब कुछ अहम फैसलों की फिजा पैदा होने लगी थी। डाइनिंग रूम के सादा से माहौल में खामोशी सी तारी थी। थोड़ी देर बाद ही सिद्दीक साहब अपनी बीवी के हमराह हाजिर हो गए। सुल्ताना बेगम धीरे से अपनी चादर को दुरुस्त करते अपने शौहर के करीब होकर बैठी। नजरें बार बार मेहमानों पर जा रुकती थी। सिकंदर साहब ने एक गहरी सांस लेते बात का आगाज किया। आवाज नरम मगर लहजा फैसला कुन था। मैं जानता हूं कि बेटियां हर बाप के दिल का सुकून होती हैं, और खास तौर पर छोटी बेटी, वो तो घर की रौनक होती है, मगर वक्त के साथ उन्हें रुखसत करना पड़ता है, और यही एक बाप का सबसे मुश्किल फर्ज होता है। उनके लहजे में खुलूस था, कोई बनावट या तकल्लुफ नहीं। वो लम्हा भर को रुके, फिर आगे बोले, मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके दरवाजे पर आया हूं और दिल से चाहता हूं कि आप हमारी बात को ना सिर्फ सुने बल्कि समझने की कोशिश करें। सुल्ताना बेगम ने आहिस्तगी से कहा, भाई साहब, आप खुलकर बात करें। माफ कीजिएगा, हम आपको जानते नहीं। आप लोग कौन हैं? उसी लम्हे जहांगीर ने हल्की सी जुम्बिश के साथ कहा, हम टेक्सटाइल के मालिक हैं। ये मेरे वालिद मोहतरम सिकंदर साहब हैं और मैं इनका बेटा जहांगीर। मगर सिकंदर साहब ने नरमी से हाथ उठाकर उसे रोका। बेटा, मुझे बात करने दो। वो सिद्दीक साहब की तरफ मुतवज्जो हुए। दरअसल बात यह है कि मैं आपकी सबसे छोटी बेटी माहीन का रिश्ता लेकर आया हूं। मेरे बेटे ने उसे कॉलेज में देखा और पहली ही नजर में पसंद कर लिया। कमरे में एक लम्हे को जैसे हवा रुक गई हो। सिद्दीक साहब ने बमुश्किल पलकें झपकी, जबकि सुल्ताना बेगम की पेशानी पर हल्की सी लकीरें उभर आईं। मैं जानता हूं कि यह बात आपके लिए अचानक है और शायद बहुत बड़ी भी, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि आप इसे एक बाप के जज्बे से देखें। मेरा बेटा संजीदा है और ये कोई वक्ती बात नहीं। उन्होंने थोड़ा झुक कर कहा, ऊपर वाले का दिया हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। इज्जत, दौलत, शोहरत। हम माहीन को बेटी बनाकर ले जाना चाहते हैं, बहू के दर्जे से ऊपर। अगर वो शादी के बाद भी तालीम जारी रखना चाहे तो हम मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। उसकी हर ख्वाहिश को अहमियत दी जाएगी। जहांगीर ने सर झुकाकर खामोशी से अपने हाथों को देखा, जैसे अपनी तकदीर का फैसला इन्हीं लम्हों में टिका हो। यकायक सिद्दीक साहब अपनी जगह से झटके से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी और हैरत की गहराई साफ नुमायां थी। वो पलके झपकाए बगैर सिकंदर साहब को घूरते हुए बोले, आपका दिमाग ठीक है? क्या आपने अपने बेटे की उम्र देखी है? मेरी बेटी महज 18 साल की है, इंटर कर रही है, और आप कह रहे हैं उसका रिश्ता आपके बेटे से कर दूं? आपको इल्म है आप किस ख्वाहिश के साथ मेरे सामने बैठे हैं? सिकंदर साहब ने नरमी से सर हिलाया। उनकी आवाज अब भी मुतवाजन और तहम्मुल से लबरेज थी। जी, मुझे इल्म है कि आपकी बेटी 18 साल की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे सारी जिंदगी अपने दर पर बिठाए रखें। और लड़के तो उम्र में बड़े होते ही हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं। जहांगीर मेच्योर है, संभाल सकता है। अभी उनकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि सिद्दीक साहब ने दोनों हाथ जोड़ दिए और आवाज बुलंद हो गई, बस करें। बहुत शुक्रिया आपके इस इज्जतदार रिश्ते का, लेकिन आप दोनों यहां से जा सकते हैं। क्या समझते हैं आप कि किसी राह चलती लड़की को पसंद कर लिया और फिर उसके घर रिश्ता लेकर आए? क्या मैं ऐसा बाप दिखाई देता हूं जो यूं बेटी किसी अजनबी को थमा दूंगा?
उनका लहजा जहर आलूद नहीं मगर इंतहाई सख्त और दुख भरा था। सुल्ताना बेगम घबराकर अपने शौहर की तरफ झुकी, हाथ से उनका बाजू पकड़कर खामोशी का इशारा दिया। सदीक आराम से, खुदा का वास्ता है, लोग बैठे हैं। मगर वो सुनने को तैयार ना थे। नहीं सुल्ताना, आज नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई महज उम्र में बड़े होने की बुनियाद पर मेरी बच्ची के नसीब के फैसले करे। उठाईगीर समझा है क्या मेरी बेटी को? ये सोच भी कैसे लिया आपने कि मैं अपनी मासूम बच्ची को, जो अभी जिंदगी की बुनियादी सीढ़ियों पर है, आपके बेटे की बीवी बना दूंगा? सिकंदर साहब की आंखों में पहली बार खफकी की झलक आई। उन्होंने तहम्मुल से बैठे रहते सख्त नजरों से सिद्दीक साहब को देखा। आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? मैं बहुत इज्जत और नरमी से बात करने आया था, और आप इस तरह। मैंने कहा जाए यहां से। सिद्दीक साहब का चेहरा मुकम्मल सुर्ख हो चुका था। मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा किसी ऐसे शख्स से जो उम्र में उससे 10-12 साल बड़ा हो, और वो भी सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसे कॉलेज में पसंद आ गई। तो ऐसी सोच पर सुल्ताना बेगम बामुश्किल अपनी आंखों की नमी छुपा सकी और चुपचाप अपने शौहर के साथ उठकर चल पड़ी। सिकंदर साहब ने एक गहरी सांस ली और जहांगीर की तरफ देखते निगाह सख्त कर ली, जैसे कुछ कहा ना हो मगर बहुत कुछ कह गए हों। वो धीरे से उठे और खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जहांगीर, जो अब तक खामोश बैठा सब सुन रहा था, एक लम्हे को घर की दीवारों को यूं देखा जैसे इन पर अपना ख्वाब लटकते देख रहा हो। फिर वो भी कुछ कहे बगैर आंखों में एक ठंडक और खून आलूद खफकी लिए दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मेंशन का मरकजी हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था, मगर उस वक्त वहां का सकूत और ठंडक दोनों ही एक तूफान की पेशगोई कर रहे थे। जैसे ही सिकंदर साहब और जहांगीर अंदर दाखिल हुए, अंदरूनी अमले ने फौरन मुअद्दब होकर रास्ता दिया, मगर सिकंदर साहब के चेहरे की सख्ती देखकर सब एक कदम पीछे हो गए। वो सीधे हॉल के वस्त में रुके, पलटे और इंतहाई गुस्से से जहांगीर को घूरते हुए धाड़ कर बोले, ये सब करने के लिए लेकर गया था तू मुझे उनके घर? इतनी जलालत! मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी घटिया खानदान की लड़की को पसंद करोगे। जहांगीर साकित खड़ा बाप के अल्फाज को अपने अंदर जज्ब करता रहा। सिकंदर साहब का चेहरा गुस्से से तप रहा था, माथे पर उभरने वाली रगें, आंखों में दहकती आग जैसे शिद्दत लिए वो चलते जहांगीर के करीब आए। मैंने अपनी इज्जत का जनाजा निकलते देखा वहां। सिकंदर साहब की आवाज अब थरथरा रही थी। जिस तरह उसके बाप ने मेरे सामने हाथ झाड़ कर कहा कि मैं बेटी उठाकर नहीं दे सकता, मेरा बस नहीं चल रहा था वहीं खड़े होकर उसकी छाती में गोलियां उतार दूं। जहांगीर के लब थरथरा गए, मगर उसने अपने जज्बात को जबरदस्ती थामा। आहिस्ता से बोला, बाबा मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। मैं खुद हैंडल कर लूंगा सब कुछ। भाड़ में गया तुम्हारा मसला, सिकंदर साहब ने तेज लहजे में जवाब दिया। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी तरफ से ये रिश्ता, ये नाम निहाद मोहब्बत सब खत्म। मैं मर जाऊंगा लेकिन अब उस घर से कोई रिश्ता नहीं जोड़ूंगा। जहांगीर की नजरें फर्श पर जम गई। उसके सीने में कुछ अंदर से कटने लगा, मगर वो बोला कुछ नहीं, सिर्फ सुना, सिर्फ बर्दाश्त किया। मेरे बेटे ने मोहब्बत की थी, ठीक है मैं मान गया, तुम्हें लेकर गया उम्मीद के साथ, इज्जत से, मगर वहां जिस तरह से मेरी इज्जत को 2 कौड़ी का किया गया, मैं वो कभी नहीं भूल सकता। वो 2 कदम पीछे हटे, गुस्से से अपने हाथों को जंबिश दी और बेरहमी से बोले, मेरी बला से सब कुछ भस्म हो जाए। अब ये रिश्ता अगर दोबारा मेरी दहलीज पर आया तो मैं खुद अपने बेटे को भी माफ नहीं करूंगा। ये कहकर वो मुड़ गए। उनके कदमों की चाप पूरे हॉल में गूंजी। उनकी पुश्त में वही रोब था, मगर अब उसके साथ बेपनाह तलखी जुड़ चुकी थी। जहांगीर वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर सदमे की एक गहरी लकीर थी। उसने दोनों मुट्ठियां कस लीं। आंखों में अब नमी के बजाय हार की तपिश थी और चेहरे पर अज़म। खामोशी से वो बस वहीं खड़ा रह गया था, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ सोच लिया था जो आगे वो करने का इरादा रखता था। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। माहिन चारपाई के कोने पर आलती पालती मारे बैठी थी और आयशा थकी हारी किताब बंद करके बैठने ही वाली थी कि माहिन ने सवाल दाग दिया,
बाजी, वो लड़का वाकई बहुत अमीर था ना? तो बाबा को क्या मसला था? हाँ बोल देते। अच्छा ही था, मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाती, आराम की जिंदगी मिलती। फजूल में ही इनकार कर दिया। आयशा ने पलकें झपकी, चेहरा ऊपर उठाया और एक झटके में उसके सर पर हल्की सी धप मार दी। चुप करो तुम्हें पता भी है क्या बोल रही हो? कुछ होश है या बस जो मुंह में आया बोले जा रही हो? माहिन थोड़ा पीछे हुई, मुंह बनाया मगर खामोशी से आयशा को देखती रही। आयशा गुस्से से बोली, हर वक्त बस बकवास। इतनी छोटी हो और शादी की लग गई तुम्हें? तुम्हें अंदाजा है उस लड़के की उम्र कितनी थी? कम से कम 10-12 साल बड़ा होगा तुमसे वो। ये अमीर लोग बीवी को सिर्फ घर की जीनत समझते हैं, मुलाजमा बनाते हैं। बाहर इनके अपने चक्कर होते हैं, महफिलें होती हैं, और बीवी वो बस नौकरानी जैसी जिंदगी गुजारती है। माही ने अब नजरें चुरा ली, लेकिन आयशा की आवाज में तलखी बढ़ गई। और तुम्हें लगता है कि जो रिश्ता तुम्हारे लिए आया था वो बहुत पारसा होगा? कितनी रातें उन लोगों ने ना जाने किन किन के साथ गुजारी होती हैं। उनके लिए रिश्ता सिर्फ एक सौदा होता है, मोहब्बत का कोई वजूद नहीं होता। तुम अपने आप को हर चीज के लिए तैयार रखो, लेकिन कम से कम सोच समझ कर बात किया करो। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वो थोड़ा सा सुकर कर बैठी, आवाज धीमी थी। तो बाजी, आप ये बात आराम से भी कह सकती थी, मारना क्या जरूरी होता है? आयशा ने गहरी सांस ली, उसकी तरफ देखा। मारे बगैर तुम्हें समझ कब आती है? जब तक चोट ना लगे तुम होश में नहीं आती। माहिन ने मुंह फुला लिया और चुपचाप नजरें दीवार पर जमा दी। एक लम्हे को कमरे में खामोशी छा गई। आयशा ने आहिस्ता से कंबल सीधा किया और एक नजर माहिन पर डाली, जो अब भी रूठे चेहरे के साथ मुंह बनाए बैठी थी। आयशा ने नरमी से कहा, चलो सो जाओ, और आइंदा ऐसी बात मुंह से निकालने से पहले 100 बार सोचना। माही ने कुछ कहे बगैर करवट बदल ली। कमरे में अब सिर्फ पंखे की आवाज बाकी रह गई थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक बहुत कुछ बता रही थी। कमरा नीम तारीख था, बस खिड़की से आती सर्द चांदनी रोशनी अंदर एक धीमी चमक बिखेर रही थी। जहांगीर स्याह रंग की शर्ट पहने खिड़की के सामने खड़ा सिगार के लंबे कश लेता हुआ गहरी सोचों में गुम था। कमरे की फिजा में तंबाकू की महक भरी हुई थी। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई और अगले लम्हे खावर खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। वो अदब से हाथ बांधे चंद कदम पीछे आकर रुक गया। जहांगीर ने सिगार से धुआं बाहर निकालते मध्यम आवाज में पूछा, क्या अपडेट है खावर? कितने बजे लड़की घर से निकलती है? खावर ने फौरी जवाब दिया, सर सुबह 8 बजे वो कॉलेज के लिए निकलती है और वापसी 2 बजे तक होती है। सदीक साहब सुबह जल्दी उठ जाते हैं और 9 बजे तक अपनी बेटियों के बाद घर से रवाना होते हैं। उनकी वापसी रात 10 बजे के करीब होती है। बस इतवार को वो सारा दिन घर में होते हैं। जहांगीर आहिस्ता से मुड़ा, उसकी नजरें खावर की आंखों में जम गई। संजीदा और पुरएतमाद लहजे में बोला, बाबा के इल्म में लाए बगैर फार्म हाउस तैयार कराओ। कल की तैयारी रखो, कल मैं खुद सिद्दीक के घर जाऊंगा। खावर ने सर को हल्की जंबिश देते कहा, आप बेफिक्र रहें सर, सब कुछ आपकी हिदायत के मुताबिक होगा। जहांगीर ने सिगार का आखिरी कश लिया और राख तान में उसे बुझा दिया। फिर कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए रुककर पलटा और खावर की तरफ देखा। और अगर वो लोग रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए तो क्या मंसूबा है? खावर ने सवाल सुनकर नजरें झुकाई, फिर आहिस्तगी से कहा, सर बड़े साहब को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर वो लोग इनकार करें तो हम लड़की को उठाएंगे, फार्म हाउस पर निकाह होगा, बाकी मामलात मैं खुद हैंडल कर लूंगा। जहांगीर ने खावर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे सब कुछ सोचा समझा हो। चंद लम्हे वो खामोश रहा, फिर बस इतना बोला, ओके। खावर ने दोबारा सर हिलाया, जी सर। ये कहते ही वो धीरे से पीछे हटा, दरवाजा खोला और खामोशी से बाहर निकल गया। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। जहांगीर कुर्सी पर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखते ज़ेरे लब बोला, जो चीज़ मेरी पसंद बन जाए उसे हासिल करना ही पड़ता है, और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। दूर कहीं रात के सन्नाटे में कोई कुत्ता भौंका और कमरे में तंबाकू की
बाकी खुशबू बस एक गवाह बनकर बाकी रह गई। अगले दिन के तकरीबन 12 बज रहे थे। सूरज सर पर आ चुका था और गर्मी अपने जोबन पर थी। मोहल्ले में अजीब सा सकूत था। अचानक एक स्याह मर्सिडीज कार सिद्दीक साहब के घर के सामने आकर रुकी। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुला और जहांगीर पुरसकून अंदाज में बाहर निकला। वो मुकम्मल सलीके से तैयार था, मगर चेहरे पर संजीदगी नुमाया थी। खावर उसके पीछे गाड़ी से उतरा। दोनों तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़े। खावर ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। एक लम्हे को खामोशी रही, फिर उसने दूसरी बार दस्तक दी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और सामने सुल्ताना बेगम खड़ी थी। उनके चेहरे पर हैरानी और घबराहट का मिला जुला तासुर था। सामने जहांगीर को देखते ही उनके चेहरे के रंग उड़ गए। अस्सलामुअलैकुम आंटी, जहांगीर ने नरम लहजे में कहा, मगर आंखों में हल्की सी करख्तगी झलक रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, जहांगीर ने खावर की तरफ देखा और सर के एक हल्के से इशारे से उसे वापस जाने का हुक्म दिया। खावर खामोशी से पलट गया। अब सिर्फ वो दोनों दरवाजे पर थे। आंटी, अंकल कहाँ हैं? बुलाएं जरा, बात करनी है। जो कल तमाशा उन्होंने किया है उसका जवाब भी तो देना था ना। उसका लहजा संजीदा था, मगर हर जुमला एक नपा तुला दबाव रखता था। सुल्ताना बेगम ने हकलाते हुए कहा, बेटा कल जो हुआ उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। खुदा के लिए यहाँ से चले जाएं। सिद्दीक घर पर हैं, वो बिला वजह का शोर खड़ा कर देंगे। हमने रिश्ते से मना कर दिया है ना। जहांगीर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। उसने अपनी कलाई की घड़ी पर एक नज़र डाली, फिर आहिस्तगी से बोला, आंटी शायद आपको इल्म नहीं, मुझे ज़िंदगी में आज तक किसी चीज़ के लिए इनकार सुनना नहीं पड़ा और मेरी डिक्शनरी में नो का लफ्ज़ शामिल ही नहीं है। वो एक कदम आगे बढ़ा और धीमी आवाज़ में मगर दो टोक अंदाज में कहा, मैं ड्राइंग रूम में जा रहा हूँ, आप जाएं और अंकल को बुलाएं, वरना आज वो कहर इस घर पर बर्पा होगा जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। सुल्ताना बेगम ने एक नज़र उसके संजीदा चेहरे पर डाली। उनकी सांसें बेतरतीब होने लगी। वो तकरीबन दौड़ती हुई अंदर की तरफ मुड़ी। जहांगीर आहिस्ता मगर पूरे एतमाद से चलता घर के अंदर दाखिल हुआ। हर कदम जैसे घर की फिजा को भारी करता जा रहा था। वो सीधा ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा और वहां जाकर बैठा, जैसे किसी मेज़बान के इंतजार में हो, मगर अंदाज ऐसा जैसे सब कुछ उसी का हो। उसकी आंखों में अब एक ठहरी हुई चमक थी, वो चमक जो तब आती है जब इंसान कुछ पाने के लिए किसी हद से गुजरने को तैयार हो। चंद लम्हों बाद ड्राइंग रूम का दरवाज़ा जोर से खुला। सिद्दीक साहब अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी नुमाया थी, जबकि सुल्ताना बेगम पीछे पीछे परेशान सी उनके साथ दाखिल हुई। सिद्दीक साहब की नज़र जैसे ही जहांगीर पर पड़ी, उनकी भवें तन गई। उनका बस नहीं चल रहा था सामने बैठे शख्स की जान ले लें, मगर वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे, इसलिए अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते धाड़ कर बोले, बहुत ही ढीठ इंसान हो तुम, किसकी इजाज़त से मेरे घर के अंदर आए हो? निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे बाप को भी और तुम्हें भी साफ इनकार कर चुका हूँ रिश्ते से। अब क्या लेने आए हो यहाँ? मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, गेट लॉस्ट। जहांगीर उनके सख्त लहजे के बावजूद नरमी से खड़ा हुआ, दोनों हाथ थोड़ा सा फैलाकर अदब से सलाम किया और फिर पुरसकून अंदाज में बोला, मैं अब भी रिश्ता ही लेने आया हूँ और चाहता हूँ कि आप प्यार से तहम्मुल से बात करें। प्लीज़ बैठ जाएं। बेवजह का तमाशा करके शोर शराबा करना, चीख चिल्ला कर बात करना, ये पढ़े लिखे लोगों को जेब नहीं देता। बैठ जाएं, मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है और बिना बातचीत किए मैं नहीं जाऊंगा। सिद्दीक साहब उसकी बात सुनकर मजीद आग बगोला हो गए। भाड़ में गए तुम और तुम्हारी बातें। नहीं दूंगा मैं अपनी बेटी किसी लालची खुद पसंद अमीरजादे को। तुम्हें क्या लगता है कि पैसे के बल पर किसी की बेटी खरीद लोगे? किस बात के लिए मुझे तैश दिला रहे हो? जहांगीर ने अब अपनी मुस्कुराहट समेटी। उसकी आंखों की चमक हल्की सी सर्द पड़ गई और वो आहिस्तगी से बोला, अरे सिद्दीक साहब, एक बात बताएं, कितने में बेचेंगे आप अपनी बेटी को? इस जुमले ने गोया जलती पर तेल का काम किया। सिद्दीक साहब आगे बढ़े और झपट कर उसका गिरेबान पकड़ लिया। उनकी आंखों में आग थी, सांसें तेज हो चुकी थी। जमीन में गाड़ दूंगा तुम्हें,
وہ چیخے، ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری بیٹی کے بارے میں ایسی گھٹیا بات کرنے کی؟ جہانگیر اب ضبط کے دائرے سے نکل چکا تھا۔ اس نے زور سے صدیق صاحب کے سینے پر ہاتھ مارا جس سے وہ ایک قدم پیچھے ہٹے۔ کل تک میں عزت سے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، عزت دینا چاہتا تھا، لیکن آپ کو نہ وہ عزت راس آئی اور نہ طریقہ۔ آپ نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال کر بہت بڑی غلطی کی ہے انکل۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے صوفے کے پاس گیا، موبائل اٹھایا اور لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازے کی دہلیز پر رکتے ایک آخری سرد نگاہ پورے کمرے پر ڈالی، پھر دروازہ زور سے بند کر کے نکل گیا۔ پیچھے صرف صدیق صاحب کی بھاری سانسیں اور سلطانہ بیگم کی لرزتی آنکھیں رہ گئیں۔ گاڑی میں تناؤ کی کیفیت محسوس کی جا سکتی تھی۔ بلیک ٹینٹڈ مرسڈیز کی کھڑکیوں سے باہر کا منظر دھندلا دکھائی دے رہا تھا، مگر اندر بیٹھے دونوں افراد کے چہروں پر صاف صاف ارادے لکھے تھے۔ خاور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ جہانگیر آگے بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک ٹھنڈی سی ضد تھی، کل صبح جیسے ہی وہ اپنے گھر سے نکلے اسے کڈنیپ کر لینا اور سیدھا فارم ہاؤس پر لے جانا۔ جہانگیر نے خاور کی طرف مڑ کر گہری نظروں سے دیکھتے کہا، میں خود دیکھتا ہوں کہ کیسے روکتا ہے وہ شخص مجھے نکاح کرنے سے۔ خاور نے سر جھکائے جواب دیا، جی سر آپ بے فکر رہیں، سب کچھ آپ کے پلان کے مطابق ہوگا۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی، صرف انجن کی ہلکی ہلکی گڑگڑاہٹ سنائی دیتی رہی۔ اگلی صبح ہلکی خون کے لیے طلوع ہوئی۔ گلی میں ہنوز سکون تھا، سورج کی شعائیں نیم گرم تھی اور پرندے اپنی مخصوص چہچہاہٹ میں مصروف۔ صدیق صاحب کا دروازہ کھلا اور ماہین کالج یونیفارم میں بیگ کندھے پر ڈالے ناشتہ کیے بغیر جلدی میں باہر نکلی۔ اس کی رفتار عام دنوں کی طرح تھی، نپی تولی مگر بے فکری سے۔ گلی کے نکڑ پر اچانک ایک بلیک مرسڈیز آ کر رکی، بڑی سرعت سے، جسے کسی کو حیرت میں ڈالنے کا ہنر رکھتی ہو۔ گاڑی رکتے ہی اگلے دونوں دروازے کھلے اور دو گارڈز تیزی سے نکلے۔ دونوں سیاہ یونیفارم میں، سن گلاسز لگائے، پروفیشنل انداز میں آگے بڑھے۔ ماہین چونک کر رکی، کچھ سمجھنے کی کوشش کی، مگر ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک گارڈ نے فوراً کلوروفارم میں بھیگا ہوا سفید رومال اس کے منہ پر رکھ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، بیگ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ایک کمر توڑ چیخ گلی میں گونجی، اور پھر اچانک خاموشی۔ دوسرا گارڈ لپک کر اسے بازوؤں سے تھام چکا تھا اور اگلے لمحے وہ دونوں اسے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال چکے تھے۔ مرسڈیز کا دروازہ بند ہوا، انجن کی آواز گونجی اور گاڑی اس تنگ گلی سے پوری رفتار کے ساتھ نکل گئی۔ چند لمحوں میں سب کچھ دوبارہ معمول پر آ چکا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زمین پر بس اس کا بیگ پڑا تھا، ایک دو کتابیں باہر گری ہوئی تھیں اور اس کی کالج کا کارڈ ہوا میں ہلکے ہلکے لرز رہا تھا۔ مرسڈیز اب شہر کی حدود سے نکل چکی تھی، رفتار مستحکم تھی اور منزل فارم ہاؤس تھا، وہ جگہ جہاں جہانگیر نے اس کی زندگی کا فیصلہ کرنا تھا، بنا اس کی مرضی کے۔ خاور پیچھے دیکھتے بولا، سر کام مکمل ہو گیا ہے، ہم فارم ہاؤس کی طرف ہیں۔ جہانگیر کی آواز فون پر سرد اور مختصر تھی، زبردست، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، فارم ہاؤس پر پہنچو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ 1 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ ہورے سے چرچراتے کھلا۔ جہانگیر کا قد آور وجود دروازے میں نمودار ہوا۔ سامنے ہی بیڈ کے نیچے کمزور سی سمٹی ہوئی لڑکی بیٹھی رو رہی تھی، اس کے ہونٹ تھر تھرا رہے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے سرخ اور دوپٹے سے چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے قدموں کی چاپ سنی، وہ سہم کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، گھبراہٹ سے اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ مجھے کالج جانا تھا، میرے امی بابا بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ اس کو دیکھتے ہی سہم کر بولی تھی۔ جہانگیر کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیمے لیکن سخت لہجے میں بولا، میں وہی ہوں جس کا رشتہ 2 دن سے تمہارے لیے آ رہا ہے، مگر تمہارے باپ نے بنا سوچے سمجھے، جانچ پڑتال کیے بغیر صرف ذلیل کر کے ہمیں دھتکار دیا۔ تمہارے باپ نے میرا گریبان پکڑا،
मेरी इज्जत खाक में मिला दी, और अब मैं उसे वही लौटाना चाहता हूं। पता है लड़की, ऐसे लोगों के साथ मैं क्या करता हूं? वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ा तो वो बेख्तियार दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, आवाज लरज रही थी। प्लीज, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, तो अल्लाह के वास्ते मेरी इज्जत को दागदार ना करें। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी हूं, मुझे इस तरह मत तोड़ें। मैं अपने माँ बाप के सामने नजरें नहीं उठा सकूंगी। जहांगीर के चेहरे के तासुरात लम्हा भर को साकित हो गए। वो एक लम्हे के लिए चुप हुआ, जैसे दिलो दिमाग के दरमियान कोई कशमकश हो रही हो। फिर आगे बढ़ा, उसकी तरफ देखते हुए बोला, मोहब्बत को कभी दागदार नहीं किया जाता। निकाह करूंगा तुमसे, तुम्हारी मर्जी से। वो और कुछ कहता उससे पहले ही वो बोली, हाँ हाँ मैं निकाह करूंगी, बस मेरी इज्जत महफूज रहे। घर में हुए कल के तमाशे में उसने सिर्फ एक बात सुनी थी, अब मैं वो करूंगा जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। और वो एक ही चीज सोचकर डर गई थी, कहीं उसकी इज्जत को दागदार ना कर दिया जाए। कमरे में लम्हा भर को खामोशी छा गई। वो बाहर चला गया था। ठीक आधे घंटे बाद बाहर से मौलवी साहब और 2 गवाह खावर के साथ अंदर दाखिल हुए। मौलवी साहब ने मुख्तसर दुआ पढ़ी। रस्म निकाह की तैयारी मुकम्मल थी। लड़की को अलग पर्दे में बिठाया गया। खावर ने वली की जगह कबूलियत दिलाई और जहांगीर के अल्फाज पूरे वसूख से गूंजे, कबूल है, कबूल है, कबूल है। दस्तखत हुए, कागज पर मोहरें सब्त हुईं, रस्मी दुआएं मुकम्मल हुईं। और अब वो उसकी बीवी थी। निकाहनामा हाथ में था। आंखें अब भी नम थीं, मगर अब एक दूसरे के सामने खड़े दोनों के दरमियान कानूनी बंधन था। जहांगीर ने खामोशी से उसे देखा और धीरे से कहा, अब तुम मेरे साथ हो, हमेशा के लिए। अपने घर को फिलहाल के लिए भूल जाओ। वो उसे देखकर रह गई थी। उसे लगा कि वो उसे उसकी घर छोड़ देगा, लेकिन अब ऐसा मुमकिन कहाँ था। 1 हफ्ते बाद कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से खुला। जहांगीर ने कदम अंदर रखा तो नजर सीधी सोफे पर बैठी लड़की पर गई। वो साकित, खामोश, नजरें झुकाए उंगलियों से अपने दुपट्टे का कोना मरोड़ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे की आवाज सुनी, सर उठाया। आंखों में एक बेचैनी, एक उम्मीद और शायद थोड़ी सी नाराजगी भी थी। जहांगीर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता उसके करीब आकर बैठ गया। दोनों के दरमियान कुछ लम्हे की खामोशी रही। फिर वो धीरे से बोली, आप कल रात कह रहे थे कि आप मुझे बाबा से मुलाकात करने के लिए लेकर जाएंगे, हम चलें? जहांगीर ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। लहजा ठंडा और सादा था। तुम्हें बहलाया था मैंने, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बहुत रो रही थी और मुझसे तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन सुन लो, मैं तुम्हें कभी भी उनसे मिलने नहीं दूंगा। ये बात अपने जहन में बिठा लो। उसने थोड़ा झुककर उसके चेहरे को बगौर देखा और नरमी से मजीद बोला, और हाँ, वक्त पर खाना खाया करो। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है तुम्हारी कि तुम भूखी रहती हो। वो थोड़ा पीछे होकर सीधी हुई, आंखों में नमी थी। वो दबी आवाज में बोली, आप बहुत बुरे हैं। मोहब्बत करने वाले ऐसे नहीं होते। मोहब्बत करने वाले तो महबूब के कदमों में जान निछावर कर देते हैं। फिर हल्के तंज के साथ बोली, आयशा बाजी बिल्कुल ठीक कहती थी। आप जैसे अमीरजादे बीवी को सिर्फ घर की जीनत समझते हैं, उसकी बात नहीं सुनते, बल्कि बाहर की औरतों के साथ वक्त गुजारते हैं। जहांगीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, आंखें सुकेड़ कर बोला, और ये आयशा बाजी कौन है? वो थोड़ा मुस्कुराई, जैसे बचपन का कोई किस्सा याद आ गया हो। मेरी बड़ी बहन है, हर वक्त मुझे मार मार कर समझाती थी कि सीधी हो जाऊं, मगर मैं ही बेवकूफ थी, कुछ समझ नहीं आई। जहांगीर बेख्तियार हंस पड़ा, फिर छेड़ने वाले अंदाज में बोला, यानी तुम इतनी बड़ी होकर भी मार खाती थी? वो खफा होकर बोली, तो इसमें कौन सी गलत बात है? बड़ी बहन भी तो माँ के बराबर होती है। फिर लम्हा भर को रुकी और आंखों में सच्चाई लिए बोली, अब बताएं ना, आप लेकर जाएंगे मुझे अम्मी के पास? जहांगीर ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा, अपना हाथ आहिस्ता से उसके सामने फैला दिया। पहले वादा करो कि वापस मेरे साथ लौटोगी,
और उन सबको बताओगी कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ। हाँ, मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे बाप की वजह से हुआ। उसने मुझे मजबूर किया। वो खामोश हो गई, नजरें झुक गई, आंखों में एक लहर सी उठी और आहिस्ता से बोली, बाबा अब मुझे कबूल नहीं करेंगे, मुझे पता है। फिर लम्हे भर की खामोशी के बाद सर उठाया और धीरे से बोली, आप बताएं, लेकर चल रहे हैं? जहांगीर ने नरमी से सर हिलाया। हाँ, लेकिन पहले वादा करो। वो एक लम्हे को रुकी, फिर आहिस्तगी से उसका हाथ थाम लिया। वादा खामोशी में कर लिया गया। अगले रोज वो लाख मना करने के बावजूद उसे सिद्दीक साहब के घर ले ही आया था। दरवाजा खुला तो धूप में नहाया हुआ सहन एक लम्हे को जैसे ठुठक गया। वो अपने शौहर के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अंदर दाखिल हुई। बरामदे में कुर्सियों पर बैठी आयशा और उसकी माँ का चेहरा जैसे एकदम रोशन हो गया। नजरें फौरन दरवाजे पर गईं और अगले लम्हे वो बेइख्तियार अम्मी कहकर उनके साथ लिपटी। माँ ने आंखों में आंसू लिए कांपते हाथों से अपनी बेटी को सीने से लगा लिया, जैसे बरसों बाद बिछड़ी हुई रूह वापस आ गई हो। आयशा खामोशी से खड़ी एक गहरी सांस के साथ बहन को देख रही थी। जहांगीर पीछे खड़ा जेबों में हाथ डाले नजरें नीची किए खामोश खड़ा था। उसके अंदाज में झिझक थी, लेकिन चेहरे पर एक ठहरा हुआ सुकून भी। तब अंदर से सिद्दीक साहब गुस्से से बाहर निकले, आंखों में इश्ताल, हाथ में मोबाइल, जैसे किसी भी लम्हे पुलिस को कॉल कर देंगे। अपने बाप को देखकर वो फौरन उनकी तरफ लपकी थी, जबकि वो बेजार से अपनी बेटी को खुद से अलग करके सख्त लहजे में कहा, यही है वो, यही है जिसने तुम्हें अगवा किया था। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा चुका हूं, बस तुम अपना बयान दे देना, इसका खात्मा मुमकिन है। वो यकदम खामोश हो गई, नजरें बाप से टकराईं, फिर धीरे से नफी में सर हिलाया। बाबा, मैं यहां सिर्फ आपसे मुलाकात के लिए आई हूं। जो कुछ माजी में हुआ वो सब खत्म हो चुका है। मेरी शादी हो चुकी है, मैंने समझौता कर लिया है। सिद्दीक साहब का चेहरा मुतगय्यर हुआ। वो बोलती रही, मानती हूं इन्होंने बहुत गलत किया, सजा के मुस्तहिक भी हैं, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो ये मुझे तलाक दे देंगे। मेरी जिंदगी बाबा बर्बाद हो जाएगी। और मैं अभी इतनी छोटी हूं, अभी तो जीने की शुरुआत की है। उसने रुककर जहांगीर की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, ये मुझे इज्जत दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, मेरी हर छोटी बात का ख्याल रखते हैं बाबा, मैं खुश हूं इनके साथ। सदीक साहब के चेहरे पर एक लम्हे को सख्ती और नरमी की कशमकश दिखाई दी। फिर वो खामोशी से पलटे और वापस अंदर की तरफ चले गए। आयशा ने एक नज़र जहांगीर पर डाली, जैसे परखना चाहती हो कि उसमें वाकई कुछ बदला है या नहीं। तब वो आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ा और सास के करीब जाकर रुक गया। मैं जानता हूं मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूं, लेकिन मुझे मौका दें, मैं इसका ख्याल रखूंगा। आपकी बेटी मेरे लिए जिम्मेदारी नहीं, अमानत है। मैं जानता हूं जो कुछ मैंने किया वो जुल्म था, लेकिन हर इंसान को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। आपका फर्ज है मुझे माफ करना। माँ कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, बस एक बात का ख्याल रखना, अगर इसकी आंख में कभी भी आंसू आया तो मैं तुम्हारी सास नहीं, इसकी माँ बनकर तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। वो झुककर सर हिला गया, जैसे ये बात दिल पर लिखी गई हो। उसने पलटकर अपनी बीवी को देखा, जो अब आंखों में सुकून लिए मुस्कुरा रही थी। वो भी मुस्कुराया। जिंदगी जिसने एक खौफ से जन्म लिया था, अब शायद एक नई रोशनी की तरफ बढ़ रही थी, और वो दोनों हाथ में हाथ डाले उस सिमत चल पड़े जहां सिर्फ एक नया आगाज था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।